Assalamu alaikum. My name is Sana Munir. Today we are going to discuss about the geological time scales. इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन, nomenclature, classification, geological clock, overview of organisms present in the pre-life, and then the importance of geological time scale, that why there is need and why it is important. Firstly, we will discuss about its definition, which is the geological time scale is a system of the chronological dating that classifies geological strata in time. There is the question arise that what is the chronological dating and strata? Strata are is the rocks and chronological dating is basically the time scales. So strata rocks को हम लोग अंडर स्टडी करते हैं स्ट्रेटोग्राफी में. सो स्ट्रेटोग्राफी क्या हुई? स्ट्रेटोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द रॉक्स by studying the present in particles and the fossils in the rocks. So हम लोग different rocks को हम लोगों ने उसमें soil particles को उसके fossils को study करने के बाद हम लोगों ने उसको study करने के बाद हम लोगों ने किया उसको टाइम स्केल्स दी, उसको क्रोनोलॉजिकल डेटिंग की कि कौन से स्पेशी की ओरिजिन क्या है, उसकी एक्सटिंक्शन क्या है. देन क्लासिफिकेशन में जो है, before we will discuss about the classification, we have to know that it is subdivided into the different areas which are eons, eras, periods, epochs and ages. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपके जो है वो eons हैं, eras, periods, epochs and ages. वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो nomenclature है और why there is need to develop the geological time scale. Nomenclature was set up by the International Commission on Stratigraphy, which you have to remember that its nomenclature was set up by the International Commission on Stratigraphy. And then why there is need to develop the geological time scale. वही हम लोग इसके फॉसिल्स को स्टडी कर रॉक्स को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने किसी भी स्पेशी की ओरिजिन क्या है, उसकी एक्सटिंक्शन क्या है, देखने के लिए हम लोगों ने इस स्केल को डिवेलप किया. जब पता चले कि जो प्रीवियस हिस्ट्री में जो स्पीशीज गुजर चुकी हैं उनको टाइम स्केल्स में स्टडी करने के लिए. देन ईओन्स, एरास, पीरियड एंड इपॉक, इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ईओन्स हैं, देन एरास, पीरियड एंड इपॉक. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ईओन्स एंड एरास. Eons are basically the largest time interval of the geological time scale, and it is subdivided into the four types, which are named as the Hadean, Archean, Proterozoic, and Phanerozoic. And Phanerozoic eon is the most recent one eon, and these all the eons are collectively known as the Precambrian. These four eons are collectively known as the Precambrian period. So there are the four types of eons, and eons are the largest period of the geological largest intervals. Eons are the largest intervals of the geological time scale, which is four types: Hadean, Archean, Proterozoic, and Phanerozoic. And these are four eons are collectively known as the Precambrian period. Then eras. Eras are basically the subdivision of the eons. And eons, Phanerozoic is the most recent one eon. So it is further subdivided into the three eras, which are named as the Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Then periods. Periods are basically the subdivision of the eras. हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारे पास डिफरेंट इराज हैं, हमारे पास तीन इराज हैं, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक और सीनोजोइक. इन तीनों इराज के हम लोग इनके पीरियड्स डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. सबसे पहले divisions of the Paleozoic era. Paleozoic era is divided into the six periods, which are named as the Cambrian period, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian period. And then Carboniferous period it is further subdivided into two types, which are named as the Pennsylvanian and Mississippian. Then periods of the Mesozoic era. Mesozoic era is further subdivided into the three periods, which are named as the Triassic, Jurassic, and Cretaceous period. Then Cenozoic era.
Cenozoic era is divided into the two periods which are named as the tertiary period and the quaternary period. उसके बाद आ जाते हैं इपॉक्स. इपॉक्स क्या हैं अब? जैसे कि इयोन्स जो हैं वो सब डिवाइड की गई हैं इनटू दी एराज में, एराज भी फर्दर सब डिवाइड की गई हैं पीरियड्स में. उस तरह पीरियड्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया इपॉक्स में. सो पीरियड्स आर द सब डिवाइडेड इनटू दी इपॉक्स. अब हमारे पास जो पीरियड है टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड, इसको हम लोगों ने फर्दर इपॉक्स में डिवाइड किया. अब इपॉक्स क्वाटरनरी पीरियड के इपॉक्स क्या है? देयर आर द टू टाइप. देयर आर द टू इपॉक्स ऑफ द क्वाटरनरी पीरियड विच आर नेम्ड एज द होलोसीन एंड पेलिस्टोसीन. उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे epochs of the tertiary period which are named as the Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene and Pliocene. So these are all the epochs of the quaternary and the tertiary period. Then general overview of organisms in the geological period के किस period में कौन सी species का origin था, कौन सी extinct हुई. हम लोगों ने देख लिया ना कि different eons, eras, periods and epochs. अब हम देख लेते हैं कि कौन से पीरियड में हम लोगों ने कहा था ना कि इयोन्स जो हैं दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द प्री कैम्ब्रियन पीरियड. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन पीरियड लिखा हुआ है, उन्होंने इयोन्स नहीं लिखे यहाँ पे लेकिन उन्होंने डायरेक्ट प्री पीरियड्स डिस्कस किए हैं जो कि क्या है. फर्स्ट पे प्री कैम्ब्रियन जो था प्रीवियस वन था प्री कैम्ब्रियन पीरियड, उसमें एवोल्यूशन के हिसाब से कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? बैक्टीरिया, एल्जी एंड जेलीफिशेस थी. देन कैम्ब्रियन पीरियड है, कैम्ब्रियन पीरियड में इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं. उसके बाद ऑर्डोविशियन है, इसमें अर्ली बोनी फिशेस की ओरिजिन है. सिलोरियन पीरियड, सिलोरियन पीरियड में अर्लीस्ट लैंड एनिमल्स हैं. डिवोनियन पीरियड में फर्स्ट सीडेड प्लांट्स एंड कार्टिलेजिनस फिशेज हैं. इसमें जो डिवोनियन पीरियड इसमें फर्स्ट सीडेड प्लांट्स हैं एंड कार्टिलेजिनस फिशेज. देन कार्बोनिफेरस है. Carboniferous period is further subdivided into two types which are known as the Pennsylvanian and Mississippian. पहले मिसिसिपियन को देखते थे. मिसिसिपियन में मैनी क्रायोट्स प्रेजेंट थी. पेंसिल्वेनियन में फर्स्ट इंसेक्ट्स थे. उसके बाद परमियन में फर्स्ट रेप्टाइल्स की ओरिजिन हुई. ट्रायसिक में फर्स्ट डायनासोर्स. जुरासिक में फर्स्ट बर्ड्स एंड जुरासिक इज द मोस्ट वेल नोन पीरियड. क्रिटेशियस पीरियड में डिफरेंट प्लांट्स डायनासोर्स प्लांट्स भी थे. मॉडर्न सीड बेयरिंग प्लांट्स एंड देन डायनासोर्स. टर्शियरी पीरियड में राइज ऑफ द मैमल्स हुआ. क्वाटरनरी पीरियड में राइज ऑफ द मैन है. उसके बाद हम लोगों ने सबकी स्पीशीज देख ली कि किस पीरियड में कौन सी स्पीशी प्रेजेंट थी. सो प्री लाइफ हिस्ट्री ऑर्गेनिजम्स ओवरव्यू यही है कि किस पीरियड में कौन सी स्पीशी प्रेजेंट थी और कब वो आके एक्सटिंक्ट हो गई. देन आपके पास आ जाती है जियोलॉजिकल क्लॉक. देन जियोलॉजिकल क्लॉक, इस जियोलॉजिकल क्लॉक में भी जो है डिफरेंट स्पीशीज़ की ओरिजिन वगैरह को जैसे टाइम स्केल्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है. तो इसकी क्लॉक रिप्रेजेंटेशन यही है कि शोज सम ऑफ द मेजर यूनिट्स ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम. एंड देन द हेडियन इयन रिप्रेजेंट्स टाइम रिकॉर्ड बिफोर द फॉसिल्स. मीन्स हेडियन इयन जो है इसको बिफोर द रिकॉर्ड फॉसिल रिकॉर्ड जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन जो अदर सब डिविजन्स जितनी भी हैं वो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को शो करती हैं. लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मतलब इसको डेवलप करने की ज़रूरत क्या पड़ी, यही कि हम लोगों को पता चले कि कौन सी रॉक्स की लेयर्स को हम स्टडी करने के बाद कौन सी स्पीशी किस पीरियड में प्रेजेंट थी, उसके एक्सटिंक्शन, उसकी ओरिजिन, और एक स्पीशी जब एक्सटिंक्ट होगी उसके बाद किस स्पीशी का ओरिजिन हो रहा है. इस सब को हम प्री लाइफ हिस्ट्री में जितनी भी स्पीशीज़ गुजर चुकी हैं उस सब को जानने के लिए हम लोगों ने ये स्केल डेवलप किया. कि मतलब आज की तो एज है, हमें नहीं पता कि प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री में कौन से ऑर्गेनिजम्स कब ओरिजिन हुआ, उनका कब एक्सटिंक्ट हुए, कब वो ख़त्म हो गए, हमें इस बात का नहीं पता. लेकिन आज हम लोगों को आज के दौर में हमें पता करने के लिए कि कौन से स्पीशीज़ एक बेसिकली द टाइम रिकॉर्ड सेट करने के लिए हम लोगों ने ये एक स्केल डेवलप किया कि हम वो जो एज गुजर चुकी है वो तो गुजर गई, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि किस इरा में किस पीरियड में कौन सी स्पीशी प्रेजेंट थी, किस स्पीशी का ओरिजिन था, किसका एक्सटिंक्शन था. सो थैंक यू, होप सो यू विल
know the minor concept of the geological time scale, that what is the geological time scale and why there is need and its importance. Thank you so much.